Good morning, class. Good morning, sir. Okay, very good morning to all. Good morning. Okay, so one time only one students will speak, and that too by raising the hands, so that there should not be any echo. Okay, please follow this guidelines Okay, sir. so that we can understand each other. This is very important lesson, and that lesson is related with our daily life. Suppose you want to uh, do some job in share market, there also this features can help you. You are appointed as an investigator, selected as an investigator, there also it is required. And for better understanding of economic system, this lesson is very much required. Most of the students in our school, they belong to uh, category first, means parents are working. Only 25% students they may be in our schools who are not whose parents are not working. So when there is a when they get the salary, uh, there is one part of the salary that is a DA. Okay, dearness allowance. How these things are declared, how government increases the salary of employees from time to time. These various aspects are will be discussed in this lesson, and is very important in that respect. In fact, this lesson index number is known as the barometer of the economy. Someone can ask, what is barometer? So, barometer is a device which measures the air pressure. What a point? Are you able to understand me? Hello. Yes, sir. Huh. So the way barometer measures the air pressure, similarly, index number is a tool to measure the various aspects of economy, how economy is functioning, and the people who are living in the economic system, what kind of pressure, economic pressures they have. Okay, is the economy is facing or passing through price rise or not? Is there is a depression like condition, or there is a downfall in a prices? These all aspects are measured through index number one or the other way. Okay, got a point? We'll study in this lesson about the whole price index numbers, consumer price index number, okay, industrial इंडेक्स नंबर्स, लेबर्स के लिए इंडेक्स नंबर, सो मेनी इंडेक्स नंबर्स आर देयर. एक और इंडेक्स नंबर्स हम पढ़ते हैं जो क्लास 12 के इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर. इसी तरह कुछ और इंडेक्स नंबर्स आते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर. ठीक है, तो बहुत तरह के इंडेक्स नंबर बनाए जा रहे हैं, जो कुछ चीज़ों को का समेशन करके कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं. हम अब धीरे से हम इस लेसन में प्रवेश करते हैं. तो लेसन कहता है इंडेक्स नंबर का. बगल से बैकग्राउंड से बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, सब्जी खीरा टमाटर सब बिक रहे हैं आसपास गलियों में, वो भी आवाज़ आपको आ रही होगी. तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने बढ़िया सा ब्रेकफास्ट कर लिया होगा. एम राइट? सब लोग ब्रेकफास्ट करके बैठे हो ना? बोलो भाई, कुछ तो भोजन भी कर लिए होंगे. चलो चलिए तो स्टार्ट करते हैं. वी आर लिविंग इन द फास्ट चेंजिंग इकोनॉमी. ओके, ये बिल्कुल आसान है, ऐसे ही पढ़ाया जाता है बेटा. फास्ट चेंजिंग इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं, कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, राइज एंड फॉल हो रहे हैं प्राइसेस में, इनस्टेबिलिटीज आ रही हैं, इकोनॉमिक साइकिल्स बदल रहे हैं. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, पॉवर्टी आ रही है, पॉवर्टी को इरेडिकेशन के बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, मतलब बहुत बहुत सारी बातें हो रही हैं. ओके,
अभी देखो कुछ दिन पहले तक लोग कुछ कितनी सारी बातें बोल रहे थे, और जैसे ही बजट में इनकम टैक्स के स्लैब्स में परिवर्तन हुआ, सब लोग बड़े खुश हो गए। सारे एम्प्लॉय बहुत खुश हो गए, सारे चैनल्स वाह 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 करने लगे। तो ये क्या है? ये फास्ट चेंजिंग इकोनॉमी है। ओके, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। इन डायनामिक इकोनॉमिक्स वी सी दैट देयर आर कंटिन्यूअस चेंजेस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, आउटपुट, इनकम, मनी सप्लाई, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एक्सेट्रा। ये बिल्कुल यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट? बोलो भाई। बोलते जाएंगे, कम से कम थम्स वाला हैंड है ना, वो आप उसको कर सकते हो। ओके, चलिए। किसने? गीतेश ने हाथ उठाया है, बोलो क्या गीतेश, क्या बात है? नथिंग सर। ओके, changes in the economy have their own impact on the level of economic activities, income and employment, general price level and so on. तो इकोनॉमी में जो परिवर्तन होंगे वो परिवर्तन हर जगह दिखाई देंगे, चाहे वो इनकम हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे जनरल प्राइस लेवल हो। एवरीथिंग इज गेटिंग अफेक्टेड बाय चेंजिंग द इकोनॉमी। ठीक है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बट माइंड, मेरे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन आपको भी प्रभावित कर रहा है, और आप लोग जो परिवर्तन कर रहे हो वो परिवर्तन मुझे ही प्रभावित कर रहा है। जैसे 8 बजे से क्लास लेना था, हाँ, और आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं ज्वाइन किए तो मुझे प्रभावित किया। गॉट माइंड? गॉट माइंड? इसी तरह है, ये एक अन्योन्याश्रय संबंध कहते हैं हिंदी में। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन द टू। इकोनॉमी भी प्रभावित कर रही है इनकम एम्प्लॉयमेंट को, प्राइस लेवल को, और प्राइस लेवल भी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। वी नो दैट मोस्ट वैल्यूज चेंजेस एंड वी आर इंटरेस्टेड नोइंग द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस। इस ये चेंज कितना हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, विच हैव टेकन प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, इन परिवर्तनों को जानने की इच्छा हमारे अंदर होती है। वी आर एक्सपीरियंसिंग इन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस। हम अपने आसपास के जो परिवर्तन होते हैं उनको भी जानने की इच्छा होती है। ठीक है, एक दूसरे को हम देखते उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो उस सारे परिवर्तनों को जानने की इच्छा होती है। अगर इकोनॉमी के परिवर्तनों को जानने की इच्छा होती है तो वो उसको जानने का एक टूल है हमारे पास, दैट इज इंडेक्स नंबर, कि हम इकोनॉमी को समझ सकें। इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, इकोनॉमी की स्थिति कैसी है, वहाँ के रहने वाले लोगों का वेलफेयर का कंडीशन कैसा है। ठीक है, इन सारे परिवर्तनों को जानने के लिए हमको एक जिस टूल की जरूरत होती है उसी को इंडेक्स नंबर, ये सारी चीज़ें उसी तरफ अप्रोच कर रही। फॉर एग्जाम्पल, वी may want to compare the average price level of different items of food। एवरेज प्राइस लेवल हमको जानने की इच्छा होती है कि 2013 में, ठीक है, और 2002 के बीच में कितना परिवर्तन हुआ। क्लास 5th का हमारा बच्चा नमन और क्लास 11th का बच्चा नमन में क्या परिवर्तन हुआ, उसकी नानी की जानने की इच्छा होगी, दादी की जानने की इच्छा होगी, पापा की जानने की इच्छा होगी, या नमन को खुद जानने की इच्छा होगी। तो इकोनॉमी में कस्टमर्स को, जो जो लोग रहते हैं इकोनॉमी में, उन कस्टमर्स को जानने की इच्छा होती है ना, कि इस दुकान से उस दुकान में प्राइस का क्या अंतर है। इकोनॉमी में रहने वाले लोग इकोनॉमिक कंडीशंस को जानना चाहते हैं, इकोनॉमिस्ट जानना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, द चेंजेस इन कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, नेशनल इनकम, accidents, crimes, business failures and many other phenomena are studied with the help of index number। तो कितना इंपॉर्टेंट है देख लो। हम कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, केजरीवाल अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेस ने अच्छा किया, बीजेपी ने अच्छा किया। ये किस बेस पर कर रहे हैं? ये सारा डेटा निकालते, उसमें महंगाई कितनी थी, अब महंगाई कितनी है, उस समय डिफेंस कैसा चल रहा था, उसमें उस समय करप्शन कैसा था, आज करप्शन कैसा, ये तमाम चीजें हैं। ठीक है, उस समय का हमारा पॉलिटिकल लीडर कैसे काम करता है, आज का पॉलिटिकल लीडर कैसे काम करता है, ये तमाम बातें गवर्नमेंट को बदलने, नई गवर्नमेंट को लाने, ये सारी बातों को डिसाइड करती है। इकोनॉमी कंडीशंस, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। गॉट अ माइंड? यस और नो? यस सर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलिए, वेरी गुड। चलिए, हिस्टोरिकली इट वाज कार्ली, एन इटालियन स्टैटिस्टिशियन हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंडेक्स नंबर। तो किसने कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। तो इस तरह सी चीजें आपको अंडरलाइन कर ली।
ठीक है, got a point? As early as 1764 to compare the prices of year 1750 with that of the year 1500. समझ में आ रही बात? मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स. एन इंडेक्स नंबर इज स्टैटिस्टिकल डिवाइस. कैसा डिवाइस है? स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स. रिलेटेड वेरिएबल्स जो बदलाव वो एक दूसरे से संबंधित हैं, उनमें कितना परिवर्तन हुआ, उसको जांचने का, परखने का, उस परिवर्तन को मापने का एक स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी तरीका है. रिलेटेड वेरिएबल्स में होने वाले परिवर्तन को नापने की तकनीक को हम इंडेक्स नंबर कहते हैं. समझ में आ रही बात? यस और नो? चलिए, इंडेक्स नंबर्स मेजर्स, उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन है. इंडेक्स नंबर्स मेजर्स द चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. समय के साथ क्या परिवर्तन हुए, 2014 में क्या था, 2025 में क्या है. जोग्राफिकल लोकेशन, पंजाब की स्थिति क्या है, बिहार की स्थिति क्या है. और सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. द कंपैरिजन मे बी बिटवीन कैटेगरीज सच एज पर्सन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स. आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है. सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद, सुविधाओं का अभाव होने के बाद भी मेरा बच्चे में कितना परिवर्तन आया, और आपका बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, और उसके जीवन में कितना क्वालिटेटिव चेंजेस आया, ये बताएगा कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा सिस्टम अच्छा है, कौन सा बच्चा अच्छा है. Am I right? बोलेंगे भाई यस और नो? यस सर. यस सर. इट ऑल्सो मेजर्स. इससे पता चलता है ना कि हाँ, मेरी क्लास में सजीव आत्माएं रहती हैं. समझ रहे हो? एक्टिव मोड में रहो. ठीक है. It also measures the changes in the value of variables like prices of a specified list of commodities, volume of production in different sectors of an industry, production of various agriculture crops, cost of living. ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये सारी जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, चाहे प्राइस में परिवर्तन हो, चाहे कितनी मात्रा में उत्पादन हो, अलग अलग सेक्टर्स में. सेक्टर्स अलग अलग बोले तो क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर. ओके, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में. अब इंडस्ट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग है, सेकेंडरी सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, सेक्टर्स अगर बोले तो ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर. प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री हो गया, और टर्सरी मतलब सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा. प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप्स, बहुत सारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, उन सब में क्या परिवर्तन हो रहा है. कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या परिवर्तन हो रहा है. मुंबई बहुत महंगा है, मुंबई में रहना बड़ा मुश्किल है, शहर में रहना बहुत मुश्किल है, गांव में रहना, सर्वाइव करना आसान है. गांव में महंगाई कम है, शहर में महंगाई कम है. गांव में आलू 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, शहर में 40 रुपए किलो मिलता है. दैट इज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग. इंडेक्स नंबर्स आर नोन एज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. देखो, ये वर्ड मैं शुरू में ही स्टार्ट बोला कि बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाओं. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, आर्थिक क्रियाओं, ठीक है, का बैरोमीटर है. बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है, एयर प्रेशर को मेजर करने का एक डिवाइस होता है बैरोमीटर. ठीक है, बोलो भाई. यस सर. ठीक है, तो अब अलग अलग डेफिनेशंस है ना. ये जो स्टैटिस्टिशियन है उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर. द वेरियस फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स आर, क्या क्या है. इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेज. कैसा है, स्पेशलाइज्ड एवरेज. यही फोकस पॉइंट है, और इसी को बुलेट पॉइंट्स कहते हैं बेटा. और बुलेट पॉइंट्स को हमेशा याद रखना. ओके, हमेशा ध्यान रखना. से कुछ अंदर कुछ लिख सकते हो. स्पेशलाइज्ड है, एक स्पेशल तरह का एवरेज है. कुछ इतना भी लिख दोगे तो कुछ टीचर को मार देने का स्कोप रहेगा. तो इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेज. एवरेजेस लाइक मीन, मीडियन, मोड. ये मीन याद है ना. इसको मैंने याद करने का एक फॉर्मूला बताया था. कोई मुझे बताएगा वो फॉर्मूला? बोलो. एक डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन इंडिको. याद आया? इंडिको सीरीज याद आया? यस सर.
Yes, sir. ओके, यस, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिको, मतलब इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। मेथड हमारे पास क्या है? डायरेक्ट मेथड, जो आप भी हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविजन मेथड, ठीक है। गॉट अ पॉइंट, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में ये तीनों आएंगे, डिस्क्रीट सीरीज में तीनों मेथड आएंगे, और कंटिन्यूअस सीरीज में तीनों मेथड 9 क्वेश्चंस। ओके, ओके, गॉट अ पॉइंट। तो देखो, एवरेजेस लाइक मीन, Yes, sir. median or mode can be used to compare two or more series। हम इसमें कंपेयर करते थे ना, दो या दो से अधिक सीरीज। mind, however, if the units in which two or more series are expressed are different, or if the series are composed of different types of items, then averages cannot be used to compare them। ठीक है, अलग अलग तरह की चीजें हैं तो उसको कंपेयर करना मुश्किल होगा। इन सच केसेस इंडेक्स नंबर्स हेल्प अस इन कंपेयरिंग चेंजेस इन द सीरीज। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, चलिए। इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। तो पहला पॉइंट क्या देखा? इंडेक्स नंबर्स आर व्हाट? स्पेशलाइज्ड नंबर, ठीक है, जो कि कंपैरिजन को मेजर करता है। कैसे कंपैरिजन को? टाइप्स, व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स are there in that, if we want to compare, then index numbers are useful। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस फॉर्म। ये किस फॉर्म में होगा? परसेंटेज के फॉर्म में होगा। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म। ऐसे ही बिल्कुल अंडरलाइन कर लिया करो ताकि बुक रीडिंग करो ना। स्पेशलाइज्ड, एवरेज, percentage forms। The changes in magnitude of a groups are expressed in terms of percentages which are independent of the units of measurement। Independent है, स्वतंत्र है, जो मेजर करना है उससे स्वतंत्र है। This facilitates the comparison of two or more index numbers in different situations। However, percentage sign is never used। इसका कभी प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल ये इस बात के लिए होता है कि कितना परिवर्तन हुआ। जैसे हम इसका, अब आगे पढ़ोगे कि इसका बेस क्या है, 100 होता है, तो 120% हो गया ना। तो 120% का मतलब क्या हुआ कि 100 से मतलब 20% प्राइस में राइज हो गया। पहले प्राइस कितना था, उससे 20% परिवर्तन हो गया, क्योंकि हमेशा इसको बेस ईयर से कंपेयर किया जाता है। जिस साल को हम जिस साल की तुलना करते हैं, हर इकोनॉमी में एक बेस ईयर बनाया जाता है जहां से तुलना किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका भी हम मेजरमेंट करते हैं तो क्लास 10th में आप कैसे थे और क्लास 11th में कैसे हो गए, तो क्लास 10th को हमने बेस बना लिया, और क्लास 12th में आप कैसे हो गए, 11th में कैसे हो गए, तो हमने उससे तुलना किया। तुलना जब भी होगा, कहीं ना कहीं रिपेयर कंपैरिजन होगा। हम कहते हैं कि हमारा ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा खराब है, तो क्या करते हैं? किसी एक बच्चे को दिमाग में रखते हैं, या एवरेज बच्चों को दिमाग में रखते हैं कि हमारा एवरेज बच्चा कैसा है, और ये बच्चा उससे बहुत ज़्यादा अंतर कर रहा है, क्लास में बहुत ज़्यादा नॉइज कर रहा है, क्लास को पढ़ने और पढ़ाने नहीं देता है, क्लास में ज़्यादा बोलता है, क्लास को अननेसेसरी बोलता है। जब बोलना तो बुरी बात नहीं है बच्चों के लिए, बट अननेसेसरी बोलना, क्लास को डिस्ट्रैक्ट करना, डिस्टर्बेंस करना, तो हम कहते हैं बच्चा खराब है। बच्चा कोई खराब होता नहीं है। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, टीचर के पास प्रेशर होता है, लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, बच्चे को कुछ होमवर्क करके आना होता है, बच्चे को कुछ अपना वर्क करके आना होता है। जब बच्चा नहीं करके आता, क्लास को डिस्ट्रैक्ट करता है। एम्बिशंस क्लियर नहीं है बच्चों के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, बड़ा पॉइंट। तो हम कहते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, वैसा है। तो हमने क्या किया? एक बेस लिया, वहां से हम कंपेयर कर रहे हैं। उसी तरह इकोनॉमी में भी जब भी हम तुलना करेंगे, जब भी हम कोई बात कहेंगे, तो हम एक एवरेज की बात करेंगे, उसी एवरेज से हम तुलना कर रहे हैं कि उस साल इतना था, महंगाई का लेवल ये था, चीज़ों की कीमतें ये थी, और इस साल चीज़ों की कीमतें ये है, मतलब पहले तो महंगाई बढ़ गई। यूपीए गवर्नमेंट में महंगाई इतनी थी, और इस गवर्नमेंट में महंगाई इतनी है, बढ़ गई। उस गवर्नमेंट में करप्शन इतना था, इस गवर्नमेंट में करप्शन कम है या ज़्यादा जो भी है, तो वो कहें कि ये गवर्नमेंट बेहतर है, या जो भी खराब है, अच्छा है, जो भी कहेंगे। पॉइंट। तो इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस इन परसेंटेज फॉर्म। तो ये परसेंटेज फॉर्म का कॉन्सेप्ट बताया कि इसका क्या उपयोग है। चलिए आगे, ठीक है। Yes, sir. इंडेक्स नंबर्स मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द रिलेशन टू टाइम और प्लेस।
समय के साथ क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों को मेजर करने का काम भी इंडेक्स नंबर करता है। इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड टू कंपेयर चेंजेज इन विच टेक प्लेस और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ क्या परिवर्तन हुआ बिटवीन लोकेशंस एंड कैटेगरीज, उन परिवर्तनों को मेजर करने का काम भी इंडेक्स नंबर करता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ लिविंग मे बी डिफरेंट एट टू डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग रहने का खर्च, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग हो सकता है एक ही समय में दो जगहों के, गांव का कॉस्ट ऑफ लिविंग, शहर का कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, गांव का कॉस्ट ऑफ लिविंग और मुंबई जैसे शहर का कॉस्ट लिविंग, बेंगलोर जैसे शहर का कॉस्ट ऑफ लिविंग और तिरुचिरापल्ली या कहीं और किसी छोटे गांव या शहर का कॉस्ट ऑफ लिविंग। ओके, ये वेरी कर सकते हैं। ओके, इंडेक्स नंबर्स मेजर्स द चेंज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। तो इंडेक्स नंबर के एक क्या फीचर निकल, पहले इसको अंडरलाइन किया। इंडेक्स नंबर्स मेजर्स द चेंज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट, जो डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं ऐसे चेंज को भी मेजर करने का टू अंडरस्टैंड, है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी इसके द्वारा हमको मिलती है। इंडेक्स नंबर्स आर मेन टू स्टडी द चेंजेस इन द इफेक्ट ऑफ such factors which cannot be measured directly, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव आइटम्स डायरेक्टली, ठीक है, एक ही वस्तु के कंपेरिजन से हम नहीं निकाल सकते। वी कैन ओनली स्टडी रिलेटिव चेंजेस इन इट बाय स्टडिंग द वेरिएशंस इन सर्टेन अदर फैक्टर्स कनेक्टेड टू इट। केवल हम कहें कि आलू वहां पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, और कहें कि ये तो महंगा शहर है, नहीं, आलू को भी देखना पड़ेगा, बैगन को भी देखना पड़ेगा, कपड़े की कीमत को भी देखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट को भी देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल को भी देखना पड़ेगा, पेट्रोलियम के एक्सपेंडिचर को भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को हम जोड़ के तब हम इसको मेजर करते हैं। तो डायरेक्ट इसी बात को यहाँ कहा गया है कि इंडेक्स नंबर्स मेजर्स द चेंज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। मतलब एक ही डायरेक्ट हम नहीं कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम रिलेटेड चीज़ों को एक साथ हम जब कनेक्ट कर पा रहे हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, ये भी महंगा है, ये भी महंगा है, ये भी महंगा है, ये भी महंगा है, देन ओके, यहाँ का कॉस्ट लिविंग ज़्यादा है, वहाँ का कॉस्ट लिविंग कम है। कम समझ में आ रही बात? Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। द मेजर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स आर प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इस तरह से फ्लो चार्ट जब नोट्स बनाओगे और फ्लो चार्ट बना के करोगे तो चीज़ें बहुत आसान बन जाती हैं, दिमाग में फीड हो जाता है, ठीक है। पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, हमेशा बनाने वाले के दिमाग में इंडेक्स नंबर बनाने का पर्पस क्या है ये क्लियर होना चाहिए। स्कूल आने का पर्पस क्या है, क्लास में बैठने का पर्पस क्या है, क्लास में टीचर के आने का पर्पस क्या है, क्लास में टीचर को पढ़ाने का पर्पस क्या है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जितना ही जिसके दिमाग में पर्पस की क्लियरिटी होगी उतना ही वो अपने फील्ड में अच्छा करेगा, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्लेयर हो। मेरी बात समझ में आ रही है? पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो आप जो इंडेक्स नंबर बना रहे हो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए बना रहे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बना रहे हो, हैप्पीनेस के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, ये पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि आप उसी से संबंधित रिलेटेड चीजों को आप ले सकें। बड़ा पॉइंट। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, हर इंडेक्स नंबर बनाने Yes, से sir. पहले एक बेस ईयर लेना पड़ता है, तुलना का वर्ष जहां से आपको तुलना करनी है, ठीक है। जब हम पृथ्वी से ग्रहों की दूरी मेजर करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट्स हैं उसकी दूरी को मेजर करते हैं, तो हम कहाँ से लेते हैं बेस ईयर? बेस प्लेस क्या होता है हमारा? अर्थ होता है। अर्थ से मार्स कितनी दूरी पर है, अर्थ से मर्क्यूरी कितनी दूरी पर है, अर्थ से जुपिटर कितनी दूरी पर है, अर्थ से सन कितनी दूरी पर है, तो ये हमने बेस लिया। उसी तरह इंडेक्स नंबर को जब मेजर करते हैं तो एक बेस ईयर लेते हैं, उस बेस ईयर से अलग अलग वर्ष की तुलना करते हैं और तब कहते हैं कि इस साल महंगाई इतनी थी, इस साल इतनी कम है। बड़ा पॉइंट। सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स और कम्युनिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किस तरह के आइटम का सिलेक्शन करें और कितने आइटम का सिलेक्ट करें। बहुत सारे आइटम्स है तो उस आइटम्स सॉरी अलग अलग आइटम का कितना वेट देना है
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आइटम का सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। कितने लोग कंजम्पशन करते हैं? अगर कुछ ऐसा आइटम है जो एक ही व्यक्ति कंजम्पशन करता है या नहीं के बराबर कंजम्पशन होता है, तो उसको हम कम वैल्यू देंगे और उस आइटम को ज्यादा वैल्यू देंगे जिसका कंजम्पशन ज्यादा होता है। जैसे हम ऑयल को कम वैल्यू देंगे, लेकिन हम चावल और दाल को ज्यादा वैल्यू देंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग चावल और दाल खाते हैं, ज्यादा मात्रा में कंजम्पशन किया जाता है। समझ में आ रही बात? तो किसको कितना वैल्यू देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स और कमोडिटीज, सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा, हमारे पास जो डेटा है चीज़ों की कीमतों का या किसी भी चीज़ का जिससे संबंधित हमारा इंडेक्स नंबर बन रहा है, तो उसका सोर्स क्या है, क्या ऑथेंटिक है। ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी भी उसकी होनी चाहिए। प्राइस कोटेशंस, हम उसके प्राइस कोटेशन को लें, ठीक है, उसकी कीमतों को लें। सिलेक्शन ऑफ द एवरेज, ठीक है, किस तरह का एवरेज ले रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट वेट्स, उसको जब वेट की मैंने बात किया, इसी पॉइंट में इधर भी हमने एक्सप्लेन किया। सिलेक्शन ऑफ इसके अभी बाद में जरूरत होगी। जैसे होता है ना कि जिसका कंजम्पशन ज़्यादा है तो उसका वेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में लोग यूज करते हैं, तो उसको फार्मूला जब बनाएंगे तो उसमें उसको वेट को हम लेंगे, जिस क्वांटिटी का ज़्यादा होगा उसी के अनुसार उसका वेट लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फार्मूला, और जो हमारे पास फार्मूला है जो आगे देखेंगे, लेस्परेज मेथड है, फिशर मेथड है, तो इस तरह के जो मेथड्स है हमारे, तो किस मेथड का प्रयोग कहाँ करना है ये भी हम इसके माध्यम से हम समझेंगे। तो हम जब इंडेक्स नंबर बनाते हैं तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम ध्यान में रखते हैं। पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, देयर इज नो ऑल पर्पस इंडेक्स नंबर, ऐसा नहीं कि एक ही इंडेक्स नंबर से आप सब काम करा दें, काम कर लें, एक ही टीचर से सारे सब्जेक्ट पढ़वा लें, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह इंडेक्स नंबर भी एक ही इंडेक्स नंबर से आप सारे पर्पस को सॉल्व कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एवरी इंडेक्स नंबर हैज अ लिमिटेशंस, लिमिटेड एंड स्पेसिफिक यूज और पर्पस। So, first step in the construction of index number is to carefully define and decide the purpose of its construction. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इज टू केयरफुली डिफाइन एंड डिसाइड, डिफाइन करना, केयरफुली डिफाइन एंड डिसाइड द पर्पस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, इसका डिसाइड द पर्पस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, कि उसका, ठीक है, उसका पर्पस क्या है। What point? If we fail to decide the purpose of the index, then it would lead to confusion, wastage of time and money. I hope it is clear. Yes, sir. For example, if Yes, you sir. if we want to measure the changes in prices and we have collected the data of quantity consumption, then it is of no use. अगर आप प्राइस में परिवर्तन देखना चाहते हो और आपने क्या लिया कि कितना किलो चावल हम खाते हैं महीने में, तो कोई मतलब नहीं है। प्राइस में आप चेंज देख रहे हो तो आपको उस अलग अलग साल के प्राइस के डेटा लेने पड़ेंगे कि 2014 में प्राइस कितना था, 2025 में प्राइस की कीमत, राइस की कीमत कितनी है। ठीक है, न कि आप 2014 में प्राइस की कीमत को 2014 से 2025 के बीच में प्राइस की कीमत को जानना चाहते हैं, लेकिन आप क्या ले रहे हो कि 2 किलो चावल उस समय हम खाते थे, इस समय 10 किलो चावल खा रहे हैं, तो ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, यू गॉट अ माइंड। सो दिस पॉइंट सेज इफ यू वांट टू मेजर चेंजेस इन प्राइस, अगर प्राइस में परिवर्तन को मेजर करना चाहते हैं, एंड वी हैव कलेक्टेड डेटा ऑफ क्वांटिटी कंजम्पशन, देन इट इज ऑफ नो यूज। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, चलो, sir. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड हियर, बट स्टिल, selection of the base year. The base period associated with an index number is a period of time that is used as a basis for comparing changes in prices or quantities in a given period. वस्तु की कीमत और वस्तु की क्वांटिटी संख्या में होने वाले परिवर्तन को जानने के लिए एक बेस ईयर की जरूरत होगी, जिसको हमने यहां बताया था। ठीक है, समय के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम what is a change in price and what kind of changes in the quantity consumption that is known through the comparing with the base year. एक साल जहां से हम तुलना कर रहे हैं कि उस साल कीमत क्या थी और इस साल कीमत क्या है,
उस साल कितना कंजम्पशन किया और इस साल हमने कितना कंजम्पशन किया। ओके। Yes, sir. No matter what period of time is used as a base period, the value of the index number for this period is always taken as 100. तो base year क्या होगा? 100. समझ में आई बात? The determination of the base period primarily depends on the objective of index number, कि index number का objective क्या है, ठीक है। उसी आधार पर इंडेक्स नंबर का बेस ईयर डिसाइड होता है। गाइडलाइंस फॉर सेलेक्टिंग ए बेस ईयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा पर्सन इसको अलग से भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है। द बेस पीरियड शुड बी नॉर्मल वन। बेस पीरियड क्या होगा? नॉर्मल वन। मतलब क्या हुआ? इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होने चाहिए। उसमें पता चला कि वहां उस समय अटैक हो गया, कंट्री में लड़ाई हो गई, ठीक है, उस समय आंदोलन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये सब सारी बातें होंगी, तो क्या होगा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो द बेस पीरियड शुड बी नॉर्मल वन। बच्चे के व्यवहार को मेजर करना है तो हम उसके बच्चों के नॉर्मल सिचुएशन, ऐसा नहीं किसी ने एक झापड़ मार दिया और बच्चे ने उस समय कुछ कर दिया तो कहेंगे नहीं बच्चा तो खराब है। ऐसा नहीं है, झापड़ खाने के बाद तो किसी का मूड बदल जाएगा, ठीक है। इसी तरह मास्टर के ऊपर भी लागू होता है कि मास्टर को इस तरीके से मेजर नहीं कहे कि कोई क्लास में कोई बच्चा बार बार डिस्टर्ब कर रहा है और टीचर गुस्सा कर दिया, मार दिया एक झापड़, तो कहे कि टीचर बड़ा खराब खराब है। नॉर्मल कंडीशंस में, चाहे बच्चा हो, चाहे टीचर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, सबको हम एक नॉर्मल कंडीशन मेजर करेंगे। तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को जानने के लिए भी हम एक बेस ईयर लेते हैं। वो बेस ईयर कैसा होगा? नॉर्मल होगा, उसमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंसेस नहीं होना चाहिए। गॉट अ पॉइंट? Yes, sir. The base period should be free from all sorts of abnormalities. Abnormal normalities or abnormal situation नहीं होना चाहिए। Irregular fluctuations like wars, floods, famines, earthquakes, economic booms and depressions, lockouts, ठीक है, लेबर स्ट्राइक्स एक्सेट्रा, ये सब डिस्टर्बेंसेज है। इस तरह के डिस्टर्बेंसेज के समय में जो कीमतें होंगी वो कीमतें रियल कीमतें नहीं मानी जाएंगी और उस कीमत से तुलना करना बेवकूफ़ी होगी। इट इज़ नॉट करेक्ट to compare from that kind of situations. If whatever the prices are, that is not the real normal situations. I hope it is clear. The difference between base year and current year should not be too large. अगर मान लो किसी बेस ईयर को आपने माना है ना, और जहां तुलना कर रहे हो बहुत लंबा गैप हो, अब हम कहें कि 2025 2025 के प्राइस को हम कंपेयर करें 1951 के, हमारी दादी के समय में चावल तो 2 रुपये था, अब ये 60 रुपये है। बहुत महंगाई हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता, ये इतना बड़ा गैप है। इसलिए बेस कंपेयर जब हम करेंगे तो आसपास के सालों से ही हम कंपेयर करेंगे। समझ में आई बात? Since index numbers are helpful in decision making and economic policies are often a matter of short period, we should not select a base period that is too distant in the past. I hope it is clear. Line clear है? Yes, I am clear. चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड बेस और चेन बेस, ठीक है। फिक्स्ड बेस और चेन बेस, द सिलेक्शन ऑफ फिक्स्ड बेस मेथड और चेन बेस मेथड डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। जो भी हम बेस ईयर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब एक सीरीज ऑफ बेस ईयर्स का प्रोविजन हो, इस साल इतना, इस अगले साल इतना, मतलब कुछ सालों का गैप हो। मतलब हम जो भी एक 1951 लिया, फिर 1951 के 10 साल बाद का बेस ईयर बनाया, फिर उसके 10 साल बाद का बेस ईयर बनाया आगे की तुलना के लिए, तो हम बेस ईयर को एक सिस्टम के अनुसार हम देखें, ठीक है। लेकिन बेस ईयर का फॉर्मूला, तकनीक वही रहेगी। तो सिलेक्शन ऑफ फिक्स्ड बेस मेथड और चेन बेस मेथड डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इन फिक्स्ड बेस मेथड द पीरियड of a comparison is kept fixed for all current years, ठीक है। In fixed base method the period of comparison is kept fixed for all current years.
In chain-based method, the changes in prices for any given year are compared with the prices in the preceding year, not with the fixed year. तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको यहां बताया गया कि फिक्स्ड बेस मेथड में क्या है, द पीरियड ऑफ कंपेरिजन इज केप्ट फिक्स्ड फॉर ऑल करंट ईयर्स। जितने भी करंट ईयर हैं, एक बेस ईयर है जहां से हम तुलना कर रहे हैं। करंट ईयर मतलब अगर 2014 को हमने बेस ईयर माना और तो हम आज का जो है 2025 वो हमारा करंट ईयर माना जाएगा। तो फिक्स्ड बेस मेथड में क्या है, द पीरियड ऑफ कंपेरिजन इज केप्ट फिक्स्ड फॉर ऑल करंट ईयर्स। जितने भी करंट ईयर्स में जो भी हम जिस तरह का भी कंपेरिजन करना चाहते हैं, तो करंट में एक फिक्स होगा तो वहां से सब कंपेयर करेंगे। इन चेन बेस्ड मेथड द चेंजेस इन प्राइसेस फॉर एनी गिवन ईयर, किसी भी निर्धारित जो वर्ष है उसमें जो चेंज हम वो मेजर कर रहे हैं, आर कंपेयर्ड विद द प्राइसेस इन द प्रीसीडिंग ईयर, जस्ट पहले वाले साल से हम तुलना कर रहे हैं। तो ये हमारा चेन बेस्ड मेथड में ये होता है कि हम जस्ट पहले वाले में चेन बेस्ड मेथड में कंपेयर करते हैं, और जो बेस ईयर मानते हैं, हाँ वो 10 साल पहले हो सकता है, 5 साल पहले से जो भी है, तो वहां से हम तुलना कर रहे हैं। तो प्रीसीडिंग ईयर से तुलना करना चेन बेस मेथड, और फिर बेस ईयर से तुलना करना वो क्या है, फिक्स्ड बेस मेथड जिसको हम कहते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. However, chain based method gives a better picture as compared to fixed base method। यहां से एक क्वेश्चन निकल सकता है कि चेन बेस्ड मेथड gives a better picture as compared to fixed base method। ठीक है, अब इसको बेस पीरियड को समझाया है, यहां पर समझ लो इसको। A base period is the reference date from which the index numbers are calculated. Presently, 2011-12 is taken as the base year in India. The base year may be changed to reflect any change over time in the composition of items making up the index in base period. If a base period is taken as a 2011 and 12, index number in 2015-16 is 250, then it is suggested that price increased by 150%। क्योंकि ये कैसे आया अभी दिखाएंगे हम। ऑन एवरेज बिटवीन 2011 एंड 12 एंड 2015-16, ऑन एन एवरेज कितना प्राइस में चेंज हुआ, 150%। कब, जब 11 एंड 12 को हमने बेस ईयर माना और हम करंट ईयर 2015-16 में प्राइस को देख रहे हैं, 250 हो गया, तो इसमें कितना परिवर्तन हुआ, 150% का। ठीक है, और सेम बास्केट ऑफ गुड्स इन 2015-16 कॉस्ट 1.5 टाइम्स एज मच एज 2011-12। अब जिसको बेस ईयर मानते हैं उसको हम 100 मान लेते हैं। करंट ईयर में कितना है, 250 है मान लो, तो 250 माइनस 100 इसके तो कितना हुआ, 150 हुआ। तो कितना चेंजेज आया, 150। ठीक है, कितना चेंज हुआ, 150 बाई 100, बेस ईयर नीचे होता है, इनटू 100, तो 150% का चेंज हुआ। यही 150% यहाँ लिखा हुआ। गॉट अ पॉइंट। Yes, sir. ठीक है, तो कितना चेंज हुआ, 1.5 टाइम्स चेंज हुआ। किससे, अगर हम बेस ईयर से तुलना कर रहे हैं तो। सिलेक्शन सबको समझ में आ रहा है ना। अभी कौन कौन बच्चे Yes, sir. क्लास में है, जरा बताओ, जरा रेज योर हैंड। कितने बच्चे जरा अटेंडेंस दे दो बेटा, बोलो भाई। 11th F के बच्चे पहले बोलो। इकरा है, वेरी गुड। Sir, Nidhi. हाँ, और Sir, Ikra. और Sir, Jo. और Sir, Meenakshi. और Sir, Gopal. और बस बोलो, बस इतने ही बच्चे हैं। 11th के कौन कौन से बच्चे हैं, Sir, Geetesh. नेक्स्ट, Sir, Naman Shukla. नेक्स्ट, Sir, Yan. नेक्स्ट, 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 बस
चलो जल्दी से करेंगे इसको, हम जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं, इसके बाद इस पॉइंट को हम एक्सप्लोर करेंगे। इतना ज़्यादा वेस्ट करने से अपना मेरा टाइम इतना वो नहीं है बेटा, सो मच वेस्टेज ऑफ टाइम, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। ये डिमोरलाइज टीचर जो आप लोग आए हो, चलो ठीक है कुछ पढ़ा दे रहा हूँ। चलिए, selection of sources of data. The data is scattered over a large area, so there are chances for its being misleading. Therefore, it is necessary that the data used should be reliable, accurate, adequate, comparable, and representative. Price quotations. Prices of many commodities vary from place to place. ठीक है, ये एग्री करते हो ना बेटा? Prices of many commodities vary from place to place, so it is not practically possible to collect price quotations from all the places. हर जगह जाके प्राइस को कलेक्ट करना मुश्किल है, तो हम कुछ लीडिंग प्लेस लेते हैं, वहां उसके आधार पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। द प्लेसेज विच आर वेल नोन फॉर ट्रेडिंग of that particular commodity can be selected for obtaining price quotations. Price quotations should be taken from the reliable sources. Source reliable होना चाहिए। ओके, बच्चों की भी अपनी रिलायबिलिटी कैसे सिद्ध होती है? टीचर ने बुलाया, बच्चे क्लास में आ गए, रिलायबल बच्चे हैं, बच्चे नहीं आते हैं, नॉट रिलायबल। ओके, उसी तरह जो हम प्राइसेस लेंगे तो वो लीडिंग होना चाहिए, लीडिंग प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी गांव के कॉर्नर से ले लिया प्राइस और कहा कि हाँ चीजें बहुत सस्ती है, महंगाई बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं। तो आपको मेजर सेंटर से, बैंगलोर से लिया, पुणे से ले लिया, कोलकाता से लिया, दिल्ली से ले लिया, मुंबई से ले लिया, एक छोटी जगह से, सबको मिला के एवरेज बनाते हैं और तब भी हम बनाते हैं। गॉट अ पॉइंट? After selecting the source of the price quotations, person should be appointed who can supply unbiased price quotations. मतलब कोई पक्षपातपूर्ण नहीं हो, अनबायस्ड हो प्राइस कोटेशंस। ठीक है, जब इसकी जरूरत हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मेथड्स ऑफ प्राइस कोटेशंस, उसका तरीका क्या है? देयर आर टू मेथड्स, ठीक है, इन विच प्राइसेस कैन बी कोटेड। मनी प्राइसेस और दूसरा है क्वांटिटी प्राइसेस। मनी प्राइसेस क्या है? इन दिस प्राइसेस आर कोटेड पर यूनिट कमोडिटी। एक यूनिट कमोडिटी का प्राइस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, शुगर एट द रेट ऑफ 40 रुपी पर केजी। 1 किलो शुगर का दाम, चीनी का दाम 40 रुपए। क्या ये मनी प्राइस है? इंडिविजुअल कमोडिटी का लिया गया पर यूनिट कमोडिटी। दूसरा क्या है? क्वांटिटी प्राइसेस आर कोटेड पर यूनिट ऑफ मनी। ठीक है, क्वांटिटी प्राइसेस आर कोटेड एज पर यूनिट ऑफ मनी। यहाँ क्या है? पर यूनिट ऑफ कमोडिटी है कि 1 किलो का दाम कितना है। यहाँ पे क्या है? पर यूनिट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, 25 ग्राम्स ऑफ शुगर फॉर 1 रुपी। 25 ग्राम्स ऑफ शुगर फॉर 1 रुपी। तो यहाँ पर एक चीज निकल गई, पर यूनिट ऑफ कमोडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पर यूनिट ऑफ कमोडिटी? फॉर शुगर एट रेट ऑफ ₹40 पर केजी और 25 ग्राम्स ऑफ शुगर फॉर 1 रुपी। ठीक है, यहां से देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा सकता है, संभावनाएं क्या होती। A decision must also be made as to whether the wholesale prices are or retail prices are required. होलसेल प्राइसेस लेना है कि रिटेल प्राइसेस लेना है, इस पर भी डिसीजन करना होगा। ठीक है, द चॉइस वुड डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर। और इस बात की, ठीक है, का निर्धारण इस बात पर किया जाएगा कि हमारा पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर का। द प्राइसेस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ चीजों की कीमतें सरकार के द्वारा निर्धारित होती हैं, नियंत्रित की जाती हैं। एंड दीज एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस शुड बी टेकन, नॉट द ब्लैक मार्केट प्राइसेस। जो ब्लैक मार्केटिंग होती है ना, चोर बाजारी, उसमें जो कीमतें होती है उसकी हम बात नहीं करते हैं। दीज एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस, जो सरकार के द्वारा नियंत्रित कीमतें हैं उसके द्वारा, विच मे बी मच हायर। ठीक है, जो सरकार के द्वारा जो कीमतें होती हैं उनको हम लेते हैं, न कि ब्लैक मार्केटिंग वाले प्राइसेस को लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा हो सकती है कीमतें। सरकार जो कीमतें निर्धारित करती है वो नियंत्रित कीमतें होती हैं। सिलेक्शन ऑफ द एवरेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस सच एज अर्थमेटिक मीन, ठीक है, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन एटसेट्रा कैन बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर मेजर करने के लिए कौन कौन से एवरेज यूज किया सकते हैं?
arithmetic mean, mode, median, geometric means, etc. From the practical point of view, median and mode are not suitable. Median and mode are not suitable because of their erratic limitations. जो उनके limitations है, चूंकि हम एवरेज ले रहे हैं ना, तो उस उनके जो लिमिटेशन की मिडिल वैल्यू लेते हैं, मोड जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है, हो सकता है बारंबारता किसी भी चीज़ की, रॉन्ग चीज़ की भी ज़्यादा हो सकती है। तो हम इसलिए हम एवरेज के रूप में ट्रेडिशनली हमने एक तरीका बनाया है कि अर्थमेटिक मीन को ही लेते हैं। तो जनरली अर्थमेटिक मीन को प्रेफर किया जाता है इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए, क्योंकि इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जो सूट नहीं करते इंडेक्स नंबर को मेजर का बेस ईयर बना लेने के लिए। बेसिकली अ चॉइस हैज़ टू बी मेड बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब इसमें भी इन दोनों मीन के बीच में अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट सिंपल ऑफ ऑल एवरेजेस, सबसे आसान है, बट इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स, इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। थ्योरेटिकली स्पीकिंग, ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज as it attaches more importance to smaller units and less importance to large units. इतने डिस्कशन के बाद ये निकल कर आया कि क्या है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट average as it attaches more importance to smaller units and less importance to large units. So it is not unduly affected by extreme values in the observations, क्योंकि ये extreme value से not मतलब उतने ज़्यादा affect नहीं होता है। Selection of appropriate weights. The term weights refers to the relative importance of different items. Relative importance of different items. ठीक है, द वेट्स, समझ में आ रही बात, इतनी समझ में आ रही बेटा? सर ठीक है, मैं सोचा था लंबा क्लास लेंगे, लेकिन बेटा अब ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे। ओके, ये थ्योरेटिकल पोर्शन हम डील कर देते हैं ना, 8 पॉइंट्स तक डील कर देते हैं। ओके, क्योंकि बच्चे बहुत कम है ना बेटा। ओके, और बहुत ज़्यादा लंबा पढ़ाएंगे ना तो आपको उतना अटेंशन भी आपका अच्छा नहीं होगा। ओके ओके सर। ओके, और एक क्लास रात में ले लेंगे अगर संभव हुआ तो, ठीक है, बड़ा पॉइंट, क्योंकि ज़्यादा एक ही साथ 2 घंटा आपके लिए भी उचित नहीं है। तब तक इसको एक बार नोट्स बना लेना, तब तक ओके, और रात में इसका हम टाइप्स ऑफ देख लेंगे। Selection of appropriate weights. The term weight refers to the relative importance of different items. The weights to be assigned to different commodities cannot be scientifically determined as importance of a commodity varies from consumer to consumer. यहाँ क्या कहता है कि वेट निर्धारित करते समय हमको बहुत साइंटिफिक होने की जरूरत है, बहुत सोच समझ कर हमको वेट निर्धारित करना पड़ेगा। द टर्म वेट रेफर्स टू, इसको वेट को क्या कहते हैं, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स, किसी भी चीज़ का तुलनात्मक महत्व जो है कितना है किसी कंज्यूमर के लिए, इस बात पर डिपेंड करता है। द वेट्स टू बी असाइंड टू डिफरेंट कमोडिटीज, ठीक है, द वेट्स टू बी असाइंड टू डिफरेंट कमोडिटीज कैन नॉट बी साइंटिफिकली डिटरमाइंड, ठीक है, एक मतलब वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एज इम्पोर्टेंस ऑफ अ कमोडिटी वेरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कोई किसी को एप्पल पसंद है तो किसी को ऑरेंजेस पसंद है, ठीक है, किसी को नमकीन पसंद है तो किसी को, तो कंज्यूमर का टेस्ट अलग अलग होगा, इसलिए कंज्यूमर हर वस्तु को अलग अलग इंपॉर्टेंस देगा, इसलिए साइंटिफिकली निर्धारित करना बड़ा मुश्किल है। द वेट्स कैन बी इधर क्वांटिटी वेट्स और वैल्यू वेट्स, या तो वो क्वांटिटी वेट होगा तो कितनी मात्रा में या कितना खर्च करता है उसके ऊपर। क्वांटिटी वेट्स आर अप्रोप्रिएट, ये कब ठीक होता है क्वांटिटी वेट्स, appropriate when various commodities are attached importance according to the amount of their quantities used, purchased or consumed, ठीक है, तो क्वांटिटी मतलब जितनी मात्रा में वो परचेज करता है उसके आधार पर इसका हम उपयोग करते हैं। तो हमारा फोकस कहाँ हो, क्वांटिटी के ऊपर हो, ठीक है। जब हम फॉर्मूला देखेंगे ना
जिस फॉर्मूले में 0 लगा हो मतलब वो बेस ईयर को इंपॉर्टेंस दे रहा है, जिस फॉर्मूले में 1 लिखा हो मतलब वो करंट ईयर को वेट दे रहा है, मतलब जो वर्तमान की कीमतें हैं उसको फोकस दे रहा है। ये ध्यान रखना, जिसमें 0 हो वो बेस ईयर को ज़्यादा महत्व दे रहा है, और जिसमें 1 हो वो करंट ईयर को ज़्यादा महत्व दे रहा है। तो इसी चीज़ को आप यहाँ समझेंगे, आप आगे और क्लैरिटी आएगी। वैल्यू वेट्स are appropriate when various commodities are attached importance according to the expenditure incurred on them। ठीक है, ठीक है, यहां पर अमाउंट ऑफ देयर क्वांटिटीज है और यहां पर एक्सपेंडिचर है। यहां संख्या है क्वांटिटी और यहां वैल्यू है। ठीक है, प्राइस कितना खर्च हो रहा है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ असाइनिंग वेट्स, इम्प्लिसिट वेट्स, explicit weights। Implicit weights, if commodities are selected so as to include several varieties, then weights are said to be implicit value, implicit weight, several variety। ठीक है, what is implicit weight, what is explicit weight? If commodities are selected so as to include several varieties, then weights are said to be implicit। Explicit weight क्या है? In case of explicit weights, some outward evidence or importance of various items in the index is given। दोबारा पढ़ते हैं। इन केस ऑफ एक्सप्लिसिट वेट्स क्या है? सब आउटवर्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपने पढ़ा है ना, आउटवर्ड कॉस्ट जिसको हम पे करते थे, तो उस सेंस में रखने से, दिमाग में रखने से आसानी होगी। एक्सप्लिसिट वेट्स, इन केस ऑफ एक्सप्लिसिट वेट्स सम आउटवर्ड एविडेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस आइटम्स इन द इंडेक्स इज गिवन। नेक्स्ट, द वेट्स मस्ट बी पीरियोडिकली रिवाइज्ड, इसको समय समय पर रिवाइज करने की जरूरत होगी इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द करंट बिहेवियर ऑफ फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस। वर्तमान में कीमतों में कैसा परिवर्तन हो रहा है इसको जानने के लिए इसको समय समय पर रिवाइज करने की जरूरत है। व्हेन ऑल आइटम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, जब सभी आइटम बराबर उसका महत्व है, एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड, अनवेटेड इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो अलग अलग तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं, जब हम उसको पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर तो और क्लियरिटी आएगी। सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फार्मूला, वेरियस फार्मूला और मेथड्स हैव बीन डिवाइज्ड बाय द स्टैटिस्टिशियन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर, लाइक लैस्पेरीज मेथड, पास्के मेथड, बाउलिस मेथड एंड फिशर्स मेथड। ठीक है, हाउएवर नो सिंगल फार्मूला कैन बी सेड टू बी अप्रोप्रिएट, लेकिन किसी को हम अप्रोप्रिएट नहीं कहेंगे फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, हर तरह के उद्देश्य को पूरा करने वाला कोई भी फार्मूला नहीं है। द चॉइस ऑफ फार्मूला वुड डिपेंड नॉट ओनली ऑन द पर्पस ऑफ द इंडेक्स बट ऑल्सो ऑन द डेटा अवेलेबल, किस तरह का हमारे पास डेटा अवेलेबल है और हमारा पर्पस क्या है, उसी पर किसी मेथड को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ये लगभग 1 घंटे की क्लास हमारी हुई है और हमने मेजर पोर्शन को किया है, कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर और ज़्यादा बच्चे होते तो और मोटिवेशन मिलता मुझे, इसको भी मैं ख़त्म कर देता, लेकिन बच्चे कम है इसलिए मैं यहीं पर स्टॉप करूँ। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, बोल देना। बाकी बच्चों को मैसेज कर देना कि रात में भी हम एक क्लास ले सकते हैं। ठीक है, क्या टाइम सुटेबल होगा बेटा, आप ही लोग डिसाइड करो, क्योंकि बाकी बच्चों पर बोलो। सर 9 बजे। 9 बजे, ठीक है, तो 9 बजे मुझे कोई कॉल कर लेना, मैसेज मत करना, मैसेज में याद नहीं रहेगा मुझे, मैसेज कभी देखूंगा नहीं देखूंगा। ओके सर। ठीक है, तो आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, यस सर। मुझे कॉल 8:30 बजे के आसपास करोगे, ऐसा नहीं कि 8:45 पे कॉल करोगे, ऐसा नहीं होगा। मान लो कि मार्केट में हूँ, कहीं बाहर हूँ ना, तो आई नीड सम टाइम टू कम बैक। ओके, यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।